Okay. Good evening, everybody. Welcome to tonight's meeting, and we're looking at the doctrine of man, spirit, soul, and body, part 3. मसीह यीशु में एक बार फिर आप सबके सलामती हो। और आज शाम हम इल्मुल इंसान की जो तालीम है उसका हिस्सा नंबर 3 को देखेंगे। Last week, we saw that God made man in his own image and after his own likeness, and that just as God is one God expressed in 3 persons, so mankind is a 3-part being of spirit, soul, and body. पिछले कुछ क्लासेस में हमने इस बात को जाना कि खुदा ने इंसान को अपने जैसा अपनी मानंद बनाया है, और जैसे खुदा जो जात में एक है उसने अपने आप को 3 मुख्तलिफ जो अकानीम है या अशखास है उसमें जाहिर किया है। इसी तरह से इंसान को जब आप देखते हैं तो खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उसको इस तरह से बनाया कि वो एक इंसान है जिसमें 3 तरह की उसकी पहचान है। वो रूह है, वो जान है और वो बदन पर मुश्तमिल है। We also saw that God is a God of divine order, and how in Genesis chapter 1 he recreated the face of the earth, and with 10 commands he called the earth out of chaos into divine order. तो हमने इस बात को भी जाना था कि खुदा जो है वो एक इलाही तरतीब और इलाही इंतजाम का या निजाम का खुदा है। और उस तरतीब को हमने इस तरह से देखा था कि खुदा ने पैदाइश की किताब में 10 मर्तबा कुछ कहा, और जब उसने कुछ कहा तो ये जो कायनात है इसमें हमें दिखाई देता है कि जमीन पर चीजें जो है वो तरतीब में यानी वजूद में आना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, उनकी एक सूरत हमें दिखाई देना नजर आती है। We then began to look at the makeup of mankind and saw that they were created by God with a divine order of spirit, soul, and body. इसी तरह से जब इंसान को बनाया गया तो उसकी जो बनावट है उसको जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो रूह है, वो जान है और वो बदन है। Can we read 1 Thessalonians 5:23, please? हम पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 23 आयत। यहाँ पे लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा में यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। And we can see here in the diagram the divine order of man, which is spirit first, soul second, and body third. और जब हम इस इलाही तरतीब को देखते हैं जो जिसमें खुदा ने इंसान को बनाया है तो सबसे पहले नंबर पर आपको उसकी रूह दिखाई देती है, दूसरे नंबर पर उसकी जान और तीसरे नंबर पर उसका बदन है। Just to go off tangent for a few seconds, you will find that in the world, if you go to a worldly counselor for advice, they will not believe that man is a 3-part being of spirit and soul. They only believe man has a soul and a body. In other words, counselors who are not Christian are anti-God because they do not believe mankind has a spirit that connects with God. वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस इलाही तरतीब को जो खुदा के कलाम में हमें दिखाई देती है कि इंसान जब उसको बनाया गया है तो वो रूह है, वो जान है और वो बदन है, इस इलाही तरतीब को नहीं मानते, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इंसान जो है वो सिर्फ जान और बदन पर मुश्तमिल है। सो इस तरह से जब वो ये बात करते हैं तो वो खुदा के इलाही इंतजाम और तरतीब की मुखालफत करते हैं, और इसका मतलब है कि वो खुदा की मुखालफत करते हैं। So we see with God's divine order that our soul and body are to submit to our spirit man. तो जब हम खुदा के इस इलाही तरतीब को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इंसान की जो जान और उसका बदन है उसको उसकी रूह के ताबे होना है। Or to turn that around, our spirit is to govern our soul and body.
اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ ہماری جان اور بدن پر حکمرانی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. And when that divine order of spirit, soul, and body is violated, it produces confusion and disorder. اور جب اس الہی ترتیب کی مخالفت کی جاتی ہے، مخالفت اس معنی میں کہ جب روح پر مسلط ہو جاتی ہے ہماری جان اور ہمارا بدن، تو پھر اس طرح سے ہم اس الہی انتظام یا ترتیب کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات اور بہت ساری جو تضادات ہیں وہ جنم لیتے ہیں. I can't tell you how important it is that you catch this revelation that God is a God of order. میں آپ کو یہ سمجھانے میں قاصر ہوں کہ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان کی جو ترتیب ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اگر آپ اس کے ترتیب کو نہیں سمجھتے تو آپ اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو، خدا کے کلام کو اور خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے. This is why a part of the gift of an apostle is to set things in order in the church and thereby prevent chaos from breaking out. تو آپ چرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے رسول کی خدمت کو کیوں رکھا ہے. رسول کی جو خدمت ہے اس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ چرچ میں الہی ترتیب جو ہے اس کو قائم رکھ سکے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اسی انداز سے، اسی ترتیب سے ہوں جس طرح سے خدا چاہتا ہے. Can we read 1 Corinthians 11:34? ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 34 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں جا کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا. Paul says, the rest I will set in order when I come. پال یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو باقی چیزیں جو ہے جو بے ترتیبی ہوئی ہیں ان کو میں ترتیب میں لوں گا. And can we read Titus 1:5, please? ہم پڑھیں گے تیتس کا خط پہلا باب اور اس کی 5 آیت. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے. Paul is telling Titus to set things in order over that large apostolic network of churches that they had in Crete. تو پولس رسول تیتس کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تجھے اس لیے کریتے میں چھوڑا ہے تاکہ تو کیا کرے، چیزوں کو ترتیب میں لائے. So Paul the apostle made sure there was order in his church network. تو پولس رسول اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ چرچ میں، کلیسیا میں جو ترتیب ہے وہ نہایت ضروری ہے. And we've already seen that God made the first Adam to function as spirit, soul, and body. اور ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ جب خدا نے پہلے آدم کو بنایا تو اس کو روح، جان اور بدن کی ترتیب میں بنایا ہے. But when Adam rebelled and sinned against God in the garden, the light of God went out in Adam's spirit and he lost his contact with God because his spirit was no longer functioning. جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے گناہ کے سبب سے کیا ہوا کہ خدا کا آدم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس طرح سے انسان گناہ کے سبب سے کیا ہوا کہ اس کی جان یعنی اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کے ارادے اور اس کا بدن جو ہے وہ اس کی روح پر غالب آیا. This reversed the divine order of spirit, soul, and body, and man now became ruled by the 5 senses of his body working through his soul. تو اس کے نتائج میں ہمیں دکھائی دیتا ہے آدم نے جو کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے باعث کیا ہوا ہے کہ انسان کا جو ترتیب تھی اس کی زندگی کی وہ بالکل تبدیل ہو گئی. اب انسان جو ہے وہ اپنے بدن سے اپنی روح پر حکمرانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ اس کی روح جو ہے وہ اس کی زندگی میں حکمرانی نہیں کر رہی، بلکہ اس کا بدن وہ جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگتا ہے، بولتا ہے، چکھتا ہے، اس کے مطابق
वो फैसले लेता है। As a result, instead of man being spirit, soul, and body, he now became body, soul, and spirit. खुदा ने जो तरतीब बनाई थी वो ये थी कि इंसान पहले रूह है, वो जान है और वो बदन है, और उसकी रूह उसकी जान और बदन पर क्या करेगी? हुक्मरानी करेगी। लेकिन इंसान के गुनाह के बाद ये क्या हुआ? ये तरतीब उल्ट हो गई, और उल्ट ऐसे हो गई कि अब इंसान अपने बदन, अपनी जान से अपनी रूह पर हुक्मरानी करता है। This reversed God's divine order and resulted in chaos in man's being. इस तरतीब के उल्ट हो जाने की वजह से इंसान की जो हस्ती है, जात है, शख्सियत है, उसमें आपको वैसा ही वीरान और सुनसानी दिखाई देती है जो पैदाइश की किताब में आपको दिखाई देती है, जब लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। But at the cross, Christ, as the last Adam and as a man, not as God, defeated Satan and took back the control of the earth that the first Adam had given to Satan. तो मसीह यस्सु ने, जो कि दूसरा आदम है, आदम सानी है, उसने सलीब पर बहैसियत कामिल इंसान और इंसानों के नुमाइंदे के तौर पर सलीब पर अपनी जान दी, और इस तरह से उसने वो सब कुछ वापस हासिल कर लिया जो पहले आदम ने अदन के बाग में खोया था। The victory of Christ at the cross now meant that the divine order of man was reversed again, and believers now function as spirit, soul, and body. और मसीह की सलीबी फतह से हुआ क्या है कि जो तरतीब पहले आदम की नाफरमानी और गुनाह के सबब से बिगड़ गई थी, अब मसीह की फर्मा बरदारी और उसकी सलीबी मौत और उसकी फतह याबी से वो तरतीब दोबारा से बहाल हुई है, और उसने इस इलाही तरतीब को जो इंसान के लिए है उसको दुरुस्त किया है कि वो अपनी रूह के वसीला से अपनी जान और अपने बदन पर हुक्मरानी कर सके। When we look at this diagram, we see that God's divine order was spirit, soul, and body, but then Adam fell into sin and reversed it, so it then became body, soul, and spirit. But at the cross, Jesus was victorious over Satan and reversed it again and brought believers into the divine order of spirit, soul, and body once again. आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है या तस्वीर शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 आपको रोज नजर आ रही हैं। एक नंबर पे जो तरतीब है, ये वो तरतीब है जिसमें खुदा ने इंसान को तख्लीक किया था कि वो रूह है, और उसकी रूह जो है उसकी जान और उसके बदन पर हुक्मरानी करने के लिए तख्लीक की गई है, बनाई गई है। तो ये डिवाइन ऑर्डर था पहला। और फिर जब आदम ने गुनाह किया तो ये ऑर्डर जो है वो तरतीब इसकी चेंज हो गई। आपको दिखाई देता है कि इंसान का जो बदन है वो उसकी जान पर और उसकी रूह पर हुक्मरानी करने लगता है। और फिर यीशु मसीह की फरमाबरदारी के बायस, उसकी सलीबी मौत के बायस, इस बिगड़ी हुई तरतीब को दोबारा से उस इलाही तरतीब के मुताबिक कर दिया गया है जो हमें तख्लीक के वक्त नजर आती है। This is why Paul in 1 Thessalonians 5:23 is exhorting the believers, come on, you're made spirit, soul, and body, and that's the way God wants to work in you from now on. यही वजह है कि आपको पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के पहले खत में ये बात बयान करते हुए दिखाई देते हैं कि इंसान वापस उस तरतीब में बहाल किया गया है जिसमें खुदा ने उसको पहले बनाया था। और वो तरतीब क्या है? वो कहता है, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा में यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। Can we read 1 Thessalonians 5:23 again, please? हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 23 आयत, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा में यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। आमीन। You may say to me, Pete, how do I know if I am living spirit, soul, and body? And the simple answer is that if you live by the word of God,
you will live out of your spirit, soul, and body. तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर पीटर, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं किस तरतीब में जिंदगी गुजार रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको सादा जवाब ये दूंगा कि अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इलाही तरतीब के मुताबिक आपकी रूह जो है वो आपकी जान और आपके बदन पर हुक्मरानी करते हुए आप अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। Have you noticed there's a lot of interruptions on the picture there, Vikas? Sorry, sir, I didn't see anything. Oh, it must be on my side then. Your picture is all over the place. It must be. It's obviously the UK's fault. Just carry on as normal. Yes, Yeah. okay, sir, continue. Okay, let's now look at an overview of the makeup of man, of spirit, soul, and body. आए And हम go on. एक तज्जिया जो है वो करते हैं और देखते हैं कि इंसान जो है उसको किस तरतीब से बनाया गया, उसकी रूह, जान और बदन को और बेहतर तौर पर हम सीखने की कोशिश करते हैं। We see on the diagram that man's spirit is made up of communion, intuition, and conscience. जब आप देखते हैं इंसान की रूह जो है उसके फंक्शन क्या हैं तो आपको पता चलता है कि इंसान की जो रूह है वो ताल्लुक बरकरार रखने के लिए और वो सोचने के लिए और फिर मुकाशफात को कबूल करने के लिए फंक्शन की गई है। Man's soul is made up of mind, will, and emotions. इंसान की जो जान है उसके जो मकासद हैं या उसके जो फंक्शंस हैं उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं कि इंसान की जो जान है वो जिम्मेदार है उसके सोच, ख्यालात, जज्बात और उसकी इरादे या मर्जी पर। And man's body is governed by his five natural senses of seeing, smelling, hearing, tasting, and touching. और इंसान का जो बदन है ये किस तरह से काम करता है? ये पांच जो हवास है, हमारे हवासे खमसा, उनके जरिया से काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी आंखों से देखते हैं, आप अपने नाक से सूंघते हैं, आप कानों से सूंघते हैं और जुबान से टेस्ट करते हैं और फिर आप हाथों से छू सकते हैं। Now, when I speak about man being spirit, soul, and body, I am, of course, also referring to women who are spirit, soul, and body. तो जब मैं ये बात कर रहा हूं कि इंसान या आदम रूह, जान और बदन में बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मर्द इस तरतीब से बनाए गए हैं। जितने भी विमेन्स हैं, औरतें हैं, खवातीन हैं, वो भी इस तरतीब से ही बनाई गई हैं। Now, in this series of spirit, soul, and body, I will speak about the three parts of man as the spirit man, the soul man, and the natural man. तो जब हम बात करें इंसान के रूह, जान और बदन पर तो आप मेरे मुंह से ये तीन जो इस्तिलाहात हैं वो सुनेंगे कि रूहानी आदमी, नफसानी आदमी और दुनियावी आदमी। Let's begin to unpack these. First of all, we're going to look at man's spirit. So let's begin to unpack these three parts of man's spirit. तो चूंकि जब हम इंसान की रूह पे बात करना चाह रहे हैं तो हम उसके कुछ खास जो फंक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। So the first thing we're going to look at is communion. तो जो सबसे पहली जो फंक्शन है या पहला काम है या मकसद है या रूह का जो फंक्शन है उसको देखते हैं और वो है ताल्लुक में रहना। Can we read 2 Corinthians 13:14, please? तो हम देखेंगे दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 14 आयत। यहाँ पे लिखा, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। 2 Corinthians 13:14 speaks about the communion of the Holy Spirit. तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि
جو حوالہ ہے وہ بات کر رہا ہے انسان کی جو شراکت ہے وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ ہے. So that word communion in Greek also means fellowship. اور اسی لفظ کا جو مطلب ہے یونانی زبان میں ایک اور لفظ انگریزی زبان کا ہے فیلوشپ، یعنی کہ شراکت رکھنا، فیلوشپ رکھنا، تعلق میں رہنا. Can we read 1 Corinthians 1:9, please? ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 9 آیت. خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. Can you see God has called us into communion, fellowship, and intimacy with the Lord Jesus Christ? آپ اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ، اس کے روح القدس کے ساتھ شراکت میں، رفاقت میں اور تعلق میں قائم کیے جا سکیں. It's only through the power of the Holy Spirit that we can have communion, fellowship, and intimacy with God the Father and God the Son. تو یہ روح القدس کے ہی وسیلہ سے ممکن ہے کہ ہم خدا باپ اور اس کے بیٹے اپنے منجی یسوع کے ساتھ فیلوشپ یعنی رفاقت رکھ سکیں، شراکت رکھ سکیں، اس کے ساتھ تعلق میں قائم کیے جا سکیں. It's also by the power of the Holy Spirit that believers have communion, fellowship, and intimacy with each other. اور یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہے کہ انسان ایماندار ہوتے ہوئے چرچ کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایک کامل اور پاک اور اچھی جو رفاقت ہے یا شراکت ہے اس میں آ سکے. Can we read 1 John 1:3, please? ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت. یہاں پہ لکھا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. Does the Urdu language use the word communion in 1 John 1:3, or does it use the word fellowship, Makaz? Yes sir, it's use the fellowship. Oh, good, great. Did you know there is a dynamic difference between friendship and fellowship? کیا آپ نے اس بات کو جانا ہے کہ دوستی میں اور شراکت میں کیا فرق ہے؟ When we meet up with a fellow believer, we may talk about our families, our jobs, and what church we go to. اس کی مثال سے ہم اس کو سمجھ پائیں گے کہ جب ہم کسی ایماندار سے ملتے ہیں، وہ ہمارا چرچ ممبر ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چرچ کا ممبر ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسیح میں ہے، تو جب ہم اس سے ملتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اپنی خدمت کی بات کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کی بات کر سکتے ہیں، مسیح کے کام کی بات کر سکتے ہیں. But that is friendship, it is not fellowship. تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ بحیثیت دوست اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. Friendship is essential to believers, but all it can do is touch your soul of mind, will, and emotions. تو دوستی جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ آپ کی روح، جان اور بدن کو متاثر کرنے والی ہو. But the moment we begin to share with each other about Jesus and the things of God, this triggers the release of the power of the Holy Spirit, and God's life is released. لیکن جیسے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے فضل اور خدا باپ کے پیار اور محبت کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو روح القدس ہم میں سے خدا کے جو الہی مکاشفات ہیں ان کو جاری کرتا ہے. We are now in fellowship with each other, and there is a spirit to spirit connection. تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شراکت میں آتے ہیں اور اس طرح ہماری جو روح ہے وہ ایک دوسرے کی روح کے ساتھ جڑتی ہے. Fellowship goes past
the soul of mind, will, and emotion and touches the spirit man, thereby releasing the life of God. तो जब हम इस शराकत में आते हैं तो रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की जो कुदरत है वो जाहिर होती है, जारी होती है। Let me give you an example of what I mean. हम एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। If you take one of the world's greatest women singers called Mariah Carey, she could sing a song in such a beautiful way that it brings you to tears. वो एक सिंगर की बात कर रहे हैं कि अगर वो कोई गाना गाती है तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उसकी आवाज सुनने से उनकी आंखों में पानी आ जाए। But no matter how great she sings and how much it affects you, she can only touch your soul of mind, will, and emotion. ये अहम नहीं है कि वो किस कदर प्यारा गा रही है, और वो उसका जो सॉन्ग है, उसका गाना जो है वो सिर्फ आपकी जान यानी आपकी ख्यालात और जज्बात को ही वो मुतासिर कर सकती है बस। But when a Christian singer sings a song about Christ, on that song, and as she sings it, it goes past your soul of mind, will, and emotion and touches your spirit man, and you are built up, refreshed, and cleansed. वो कह रहे हैं कि दूसरी जानब एक ऐसा ईमानदार जो रूह में खुदा की बढ़ाई कर रहा है, मसीह के काम की तारीफ कर रहा है गाते हुए, तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको सुनेंगे तो फिर वो आपकी रूह, जान और बदन को मुतासिर करेगा। Can we read John 3:6, please? हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 6 है। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। In John 3:6, Jesus brings out the distinct separation between flesh and spirit. इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म और रूह में जो फर्क है उसको बयान किया है। When Mariah Carey sings and it moves us emotionally, that's great, but all it is something born of the flesh. जब वो सिंगर गाना गाती है और उसको सुनने के बाद लोग मुतासर हो रहे हैं, तो ये उनकी जिस्मानी कैफियत को जाहिर कर रहा है, उनकी जो नफसानी आदमी है उसको टच कर रहा है, और ये इस बात को जाहिर करता है कि ये जो शख्स है जो उसके गाने से मुतासिर हो रहा है ये जिस्म से पैदा हुआ है। Whereas when a Christian lady sings a Christian song about Christ, she may just be a normal singer of no great notes, but because of the anointing of the Spirit upon it, that song is born of the Spirit and it will move you spiritually. तो दूसरी जानब एक ईमानदार औरत जो बहुत अच्छा गा नहीं सकती, उसके जो स्केल्स हैं वो भी ठीक नहीं है, उसको बहुत अच्छा गाने का पता नहीं है, लेकिन जब वो मसीह की तारीफ, उसके सलीबी काम, खुदा बाप और रूहुल कुद्स की तारीफ में गा रही होगी, तो इससे क्या होगा, उसकी जान, उसकी रूह और उसका बदन तीनों ही मुतासिर हो रहेंगे, क्योंकि उसकी रूह के वसीला से खुदा पाक रूह उसकी जान और उसके बदन को मुतासिर कर रहा होगा। This is why it's good for us to be in praise and worship on a regular basis. Why? Because it is touching and releasing our spirit that cleanses and strengthens us. इसीलिए रोजमर्रा जिंदगी में हमें खुदावंद की तमजीद और तारीफ में वक्त गुजारना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि रूहुल कुद्स हमारी रूह के जरिया से हमारी जान और हमारे बदन पर हुक्मरानी के लिए हमें कुव्वत अता करता है। So if I meet with a fellow Christian and start sharing about the grace of Christ, when I speak about Christ, the Holy Spirit is released from my spirit and it touches the spirit of the believer and builds them up
and refreshes and strengthens them. मिसाल के तौर पर मैं किसी शख्स के साथ बातचीत कर रहा हूं और मैं खुदा की मोहब्बत और प्यार और फजल को अपनी जुबान से अदा कर रहा हूं और उस तक वो बातें पहुंच रही हैं, तो होगा क्या कि रूहुल कुद्स मुझ में से होकर मेरी रूह में से होता हुआ उस कलाम को दूसरे शख्स की रूह तक लेकर जाएगा और इस तरह से वो शख्स रूहानी तौर पर एक कुव्वत और एक बरकत को महसूस करेगा। And when that other believer begins to share grace with me, the Holy Spirit is released through their spirit. It then touches my spirit and builds me up and refreshes and cleanses me spiritually. और इसी तरह जब वो शख्स मसीह के फजल प्यार और उसके काम को जो बयां से बाहर है रूहुल कुद्स के वसीला से मेरे साथ शेयर करेगा, बांटेगा, तो क्या होगा कि मैं भी रूह में तरक्की करूंगा और मुझे भी ताजगी मिलेगी। Are you beginning to catch how powerful fellowship and communion are in the life of the church and how powerful your spirit man is? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि हमारा रोजमर्रा जिंदगी में फेलोशिप यानी शराकत में रहना एक दूसरे के लिए किस कदर बाबरकत है और हमारी रूह जो हम में से हमारी जान और बदन पर हुक्मरानी के लिए बनाई गई है, वो कैसे रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की तारीफ जब हम करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी पर हुक्मरानी करती हुए हमें एक ताजगी, बरकत और कुदरत मुहैया करती है। And the challenge for believers today is to find time to have fellowship with each other. और आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, वो यही है कि वो वक्त निकाल कर एक दूसरे के साथ फेलोशिप में शराकत में आकर मसीह के सलीब पर मुकम्मल शुदा काम यानी उसके फजल को एक दूसरे के साथ बांट सके। Satan has seen fit today to make us far too busy to have fellowship. और इबलीस ने एक चाल में हम में से बहुत सारे लोगों को फंसाया हुआ है कि हम वक्त ही नहीं निकाल पाते एक दूसरे के साथ फेलोशिप करने के लिए। So if we're going to have fellowship with each other, we must make time for it. और हमें एक दूसरे के साथ शराकत के लिए, फेलोशिप के लिए वक्त निकालने की जरूरत है। Meeting up with each other at church on Sundays does not mean we are having fellowship. इतवार वाले दिन सारे बस एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, दुआ करना और 2-4 मिनट के लिए मिल लेना, ये फेलोशिप नहीं है। As we meet up on a Sunday, we may discuss our family life, our jobs, where we've been, but that is not fellowship, it's only friendship. हो सकता है कि हम चर्च में हर संडे या जब भी चर्च में इकट्ठे होते हैं तो हम अपने कुछ दोस्तों के साथ, ईमानदारों के साथ अपनी जिंदगी, खिदमत और काम के मुतालिक, फैमिली के मुतालिक बातचीत करते हों, लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि ये सारी बातें आपकी दोस्ती को जाहिर करती हैं, फेलोशिप को नहीं। It only becomes fellowship when we talk about the things of Christ. फेलोशिप, शराकत उसी वक्त होती है जब आप एक दूसरे के साथ मसीह के फजल का बयान करते। I want to encourage you to invite fellow believers round to your home for an evening meal and talk about Christ. That is fellowship and intimacy, and you will come out of that evening strengthened and refreshed. मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप अपने करीबी कुछ जो लोग हैं ईमानदार, आप उनको हफ्ते में एक शाम अपने घर पर जरूर दावत दें, उनके लिए खाना भी बनाएं और फिर कुछ वक्त जो है उनके साथ खुदा के फजल का बयान करें ताकि वो भी खुदा की इलाही मोहब्बत और प्यार को जाने, उनके लिए रूहानी तरक्की हो और आप खुद भी ताजगी का तजुर्बा करें। Do you remember the story of the two disciples on the road to Emmaus in Luke chapter 24?
کیا آپ کو یاد ہے کہ لوکا کی انجیل اس کا 24 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر دو دوستوں کی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو اماوس کے راہ پر جا رہے ہوتے ہیں. As they were walking along, Jesus joined them, but they didn't know it was Jesus. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور یسوع ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتا ہے. As they walked along the road, Jesus taught them about himself from the law, the Psalms, and the prophets. اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. پھر یسوع کیا کرتے ہیں، ان کو زبور سے، شریعت سے، نبیوں کے صحیفوں میں سے اپنی بابت جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کے ذہن کو کھولتے ہیں. پھر وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے وہ کون. They then recognized him, but the scripture says he vanished from their sight. اور جب یسوع نے ان کے ذہنوں کو کھولا اور وہ جان گئے کہ یہ یسوع ہمارا خداوند نجات دہندہ ہے، تو پھر لکھا ہے کہ یسوع وہاں سے چلے گئے. And we ask the question, what was their response to spending that time with Jesus? تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ وقت گزارنے کا کیا مقصد ہے. Can we read Luke 24:32, please? ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 32 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے. Can you see? They said, while Jesus spoke to us, our hearts burned within us. یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ فیلوشپ میں، شراکت میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یسوع آپ کے دلوں کو تازہ کرتا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے دل جوش سے بھر جاتے ہیں. Their hearts burned within them because they were having true fellowship with Jesus. اور ان کے دل جوش سے اسی لیے بھر جاتے ہیں کیونکہ ان کی رفاقت، ان کی شراکت جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ. Excuse me a second. Just hang on a second. روح ہے، اور وہ خدا جو روح ہے اس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. جب آپ اس کی کاراگری پر، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر، اس کی تخلیق پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاص اور سپریم جو بینگ ہے اس نے اس کو بنایا ہے. اور اس کی جو ترتیب ہے، آپ نظام شمسی کو دیکھیں، اپنے کائنات میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہر ایک چیز اس قانون کے مطابق چل رہی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا. اگر اس میں سے کچھ بھی اوپر نیچے ہو تو چیزیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جائیں گی. سو خدا نے محض اس کائنات کو بنایا نہیں ہے بلکہ وہ اس کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے قوانین کے مطابق چل سکیں. اور وہ خدا جو روح ہے، جب اس نے انسان کو بنایا تو اس لیے بنایا کہ انسان اس کے ساتھ فیلوشپ کر سکے، رفاقت رکھ سکے اور اس کے ساتھ تعلق کو انجوائے کر سکے، یعنی کہ خدا کی محبت کو انسان انجوائے کر سکے. اور انسان خدا کو دیکھنے کا منتظر ہے، اور ہم سب کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں یہ چاہت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس کے اندر ضرور یہ چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو دیکھے، وہ اپنے خالق کو دیکھ سکے. اور انسان گناہ کے باعث خدا کے ساتھ تعلق میں برقرار نہ رہ سکا، اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ تڑپ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھی، اور پھر ہمیں مختلف
واقعات میں دکھائی دیتا ہے کہ کس طور سے خدا نے اپنے آپ کو لوگوں پر ریویل کیا، ظاہر کیا، اور جتنوں پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کسی شخص نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ بات کریں تو آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے شبیہات کو دیکھا ہے، جنہوں نے سائنس کو دیکھا ہے، نشانات کو دیکھا ہے، اور ان میں سے انہوں نے خدا کی جھلک پائی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر موسیٰ کو آپ دیکھیں تو موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کیا کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ خدا جو روح ہے وہ جلال سے منور ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی پاکیزگی، جس کے جلال کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرے نمبر پر وہ روح ہے، سو خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے پیار کو، اپنے محبت کو ظاہر کیا، مختلف نشانوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، اور کئی کئی واقعات میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے خدا لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خدا یہ سٹیج سیٹ کر رہا تھا کہ اس خواہش کو پورا کیا جا سکے جو انسان کے دل میں ہے، کہ وہ اپنے کریٹر کو دیکھ سکے۔ اور ہم سب اس بات کی اہمیت کو جان سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خاص نقطہ ہے، خاص ایک پوائنٹ ہے کہ جس میں لوگ آپ کو بے بس ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو دیکھنے کے لیے، یا خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کی شبیہات کو بناتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ وہ اس خدا کو دیکھ سکیں، اس خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں خدا کے کلام میں دکھائی دیتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم میرے حضور کسی اور معبود کو نہ ماننا، اور نہ ہی کوئی تراشی ہوئی مورت اپنے لیے بنانا، کیونکہ میرا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سو خدا اس بات کو بھی جانتا تھا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے، اور مختلف واقعات میں، مختلف ادوار میں لوگوں نے بھی اپنی اس خواہش کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ جس کے حضور میں سجدے کرتا ہوں میں اس کو دیکھ بھی پاؤں، ٹھیک ہے۔ سو وہ شعر مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم قبیلے سے انسان کا تعلق ہے، ان کے اندر یہ خواہش ضرور ہوگی، اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ خدا جو روح ہے، وہ خدا جس نے اپنے آپ کو باپ کے طور پر، اپنے آپ کو روح کے طور پر، روح القدس کے طور پر ظاہر کیا، اس خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کر سکے۔ آمین۔ سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے کس طور سے انسان کی اس ضرورت کو، خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی الفت جو انسان کے ساتھ ہے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور خدا مجسم ہوا، اور مسیح یسو میں ہم نے اس کو دیکھا۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ریفرنس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر 14 آیت میں کیا لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آگے 18 آیت کو جب پڑھتے ہیں
تو वहां पे लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। सो इस आयत को जब आप देखते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, अगर किसी ने ये दावा किया है कि मैंने खुदा को देखा है, तो यूहन्ना रसूल कहता है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में या न्यू टेस्टमेंट में किसी ने खुदा को देखा है तो उसने उसके इकलौते बेटे को देखा है, और बेटे के जरिया से हमने खुदा को जाना है। यशायाह जब कहता है कि मैंने देखा खुदा को तख्त पर बैठे हुए और मैं जिंदा रहा, और वो इस बात का दावा करता है कि ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने खुदा को देखा और मैं जीता रहा। मूसा ने जब खुदा के जलाल को देखा तो उसने किसको देखा था? मसीह को, खुदा के बेटे को देखा था, प्री इनकारनेट क्राइस्ट। तजस्सुम से पहले यानी कामिल इंसान होकर इस जमीन पर आने से पहले अगर किसी ने खुदा को देखा है कलाम के मुताबिक तो उन्होंने खुदा के बेटे को देखा, क्योंकि यूहन्ना ये कहते हैं खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वो इनविजिबल गॉड है। अगर उसने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया है तो वो अपने बेटे के वसीला से किया है। और यूहन्ना कहते हैं कि ये वही बेटा है जो बाप की गोद में है। गोद में होने से मुराद है कि ये उसके साथ अजली ताल्लुक में है, ये उसका अजली बेटा है और इसी ने बाप को जाहिर किया है। तो यूहन्ना रसूल इस बयान को कलम बंद करते हैं कि हम उसके साथ रहे, हम उसके साथ वक्त गुजारते रहे, हमने अपने हाथों से उसको छू कर देखा, अपनी आंखों से उसको देखा और अपने कानों से उसको सुना, और उसी का पैगाम हम तुम्हें देते हैं। यूहन्ना के खत के पहले बाब में, पहले खत में आप इन बातों को देख सकते हैं। तो यूहन्ना रसूल और बाकी रसूल जो यीशु के साथ रहे वो चशमदीद गवाह हैं इस बात के कि जिनको जिसको उन्होंने देखा था ये वही है जो खुदा के साथ अजल से था, बाप के साथ अजल से था। ये खुदा का अजली बेटा है, ये खुदा है जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान बना, ताकि इंसान यीशु में से खुदा को देख सके। वो खुदा जो बाप है, वो खुदा जो बेटा है, वो खुदा जो रूह है। हम पर रूहुल कुछ को किसने जाहिर किया है? बेटे ने। हम पर बाप को किसने जाहिर किया है? बेटे ने, यीशु ने जाहिर किया। इसलिए जब यूहन्ना ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये उस बात की तरफ इशारा है जिसको पौलुस रसूल कहते हैं उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत कर रही। ठीक है जी। सो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अगर किसी ने दावा किया कि मैंने खुदा को देखा और मैं जिंदा रहा, तो उसने हकीकत में खुदा के बेटे को देखा, क्योंकि खुदा अपने बेटे में से जाहिर होता है। आमीन। ये जो आयत है, पहला बाब यूहन्ना की इंजील और उसकी 18 आयत, इसको जब आप देखते हैं तो एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन है ESV। यहां पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है नो वन हैज एवर सीन गॉड, द ओनली गॉड हु इज एट द फादर्स साइड, ही हैज मेड हिम नाउन। तो ये ट्रांसलेशन उस हकीकी मफहूम को, मानी को बयान कर रही है कि खुदा को जो किसी ने नहीं देखा उसको खुदा ही ने जाहिर किया है जो मुजस्सम सूरत में हमारे पास आया। ठीक है। सो यीशु मसीह खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ, और इस जिस्म में ही हमने खुदा को जाना है, हमने बाप को जाना है, हमने पाकरू को जाना है। आगे बढ़ते हैं। सो इंसान खुदा का ख्वाहिशमंद रहा।
खुदा को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये इसरार किया, जैसे कि मैंने मूसा के बारे में बताया। आप इसको देख सकते हैं खरूज की किताब 33 बाब और उसकी 17 से 23 आयत तक, और फिर 34 बाब और उसकी 5 से 8 आयत। फिर इसके बाद यसाया आपको दूसरा शख्स दिखाई देता है जिसने खुदा को देखा। और फिर नए अहदनामे में आपको तीसरा शख्स जो है वो फिलिप्पुस दिखाई देता है, और फिलिप्पुस यीशु से कहता है कि हमारे लिए इतना ही काफी है कि तू बाप को हमको दिखा दे। तो ये वो ख्वाहिश थी जो हमें मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ दौर में, अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस ख्वाहिश को रखते हुए दिखाई देते हैं। फिलिप्पुस ने कहा कि खुदावंद हमारे लिए इतना ही काफी है कि तू क्या कर, हम पर बाप को जाहिर कर दे, बाप हमको दिखा दे। तो वो क्या दावा करना चाह रहे थे, किसको ख्वाहिश देखने के ख्वाहिशमंद थे? खुदा को देखने के ख्वाहिशमंद। यीशु मसीह का जवाब क्या था? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ठीक है, सो यीशु मसीह खुदा बाप की एग्जैक्ट इमेज है। अगर कोई कहता है कि मैंने बाप को देखा है, अगर कोई कहता है मैंने खुदा को देखा है, और उसका देखना यीशु के किरदार, उसकी शख्सियत से फर्क है, तो इसका मतलब है कि उसने खुदा को नहीं देखा। यीशु ही खुदा की एग्जैक्ट इमेज है। खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह में जाहिर किया है। सो खुदा को हमने मसीह में देखा है। और ये कैसी खुश नसीबी की बात है कि हम ईमान की आंखों से यीशु में आज भी खुदा को देख सकते हैं, बाप को देख सकते हैं, रूहुल कुद्स को देख सकते हैं, और अपनी जिंदगियों में उसके प्यार को महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मसीह खुदा की सूरत है, और कैसे खुदा के कलाम में ये दावा किया गया है कि खुदा जो जाहिर हुआ है वो मसीह में जाहिर हुआ है, क्योंकि मसीह खुदा है। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मसीह खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। ये दोनों लफ्ज परताव और नक्श, इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ एक बातों को हम जानेंगे। वो ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसके जलाल का परताव है, रेडियंस, ठीक है, और उसकी जात का नक्श है। तो जलाल किसको कहते हैं? खुदा की तमाम सिफात को यकजा कर लिया जाए तो ये सिफात का मजमुआ खुदा का जलाल कहलाता है। सो हम यीशु मसीह में जो खुदा मुजस्सम है, मुजस्सम खुदा है, उसमें हम खुदा की तमाम सिफात को एक साथ यकजा देखते हैं। और खुदा की तमाम सिफात को अगर आप यकजा कर लें तो वो मोहब्बत है, वो फजल है। और यीशु मसीह की जिंदगी में उसके किरदार से, उसकी जात से, उसके शख्सियत से हम खुदा की मोहब्बत को झलकता हुआ दिखाई दे। और यीशु मसीह में वो तमाम सिफात थी जो बाप में थी, और इस तरह से वो खुदा के जलाल का परताव है कि अगर आप बाप को देखना चाहते हैं, बाप को समझना चाहते हैं, उसकी सिफात के जरिए से आप उसको समझ सकते हैं, आप उसकी शख्सियत के जरिए से उसको समझ सकते हैं। और उसकी सिफात, उसकी शख्सियत को जाहिर कैसे किया गया है? उसके बेटे के किरदार से। मिसाल के तौर पर आप खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा की एक सिफ्त है कि खुदा हर जगह मौजूद है। यीशु मसीह ने ये कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। और जूइश ट्रेडिशन क्या है, जूइश रवायात के मुताबिक हम इस बात को देख सकते हैं कि जो यहूदी हैं वो इस बात पर ईमान रखते थे कि हम यहोवा के नाम से अगर इकट्ठे होते हैं, या जहां पर तौरात
पढ़ी जाती है, अगर 2 से 3 लोग मुत्फिक होते हैं वहां पर, तो वहां पर खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा वहां पर मौजूद। तो यीशु मसीह क्या दावा कर रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनके दरमियान मौजूद हूं जो मेरे नाम से जमा है। तो यीशु मसीह फिर मत्ती की इंजील में ही हमें ये बताते हैं कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ। तो ये उन सिफात का दावा है जो हमें खुदा में दिखाई देती है। खुदा के बारे में हम सुनते और पढ़ते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, मसीह हर जगह मौजूद है, खुदा का बेटा हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो मुजस्सम खुदा है। खुदा सब कुछ जानने वाला है। हम खुदा के एट्रीब्यूट्स को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। उनमें से एक ये है कि खुदा सब कुछ जानने वाला है, वो ऑल नोइंग। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 47 से 49 आयत को जब देखते हैं तो हमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्य दिखाई देता है नतनिएल का। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि यीशु उससे कहते हैं कि हाँ, जब तू उस पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ रहा था तो मैंने तुझे देखा और मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने सुना भी है। उस आयत को, उस हवाले को जब आप पढ़ते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वो सुनने वाला भी है, वो देखने वाला भी है, और वो सब कुछ जानने वाला भी है। मत्ती 24 बाब और उसकी 36 आयत में भी आप इसको देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखते हैं कि खुदा कादिर मुतलिक है। यशाया इस बारे में हमें बयान करता है। मसीह से कोई 750 800 साल कबल वो इस बात का को रिवील करता है, खुशखबरी देता है कि देखो, एक कंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा होगा। वो कौन होगा? वो खुदाए कादिर होगा। ये वही खुदाए कादिर है जिसको देखने का मुश्ताक अब्राहम था। और अब्राहम के वाक्य में आप देखें तो वहां पे लिखा है कि मैं खुदाए कादिर हूं जो तेरा बड़ा अजर हूं। और वही खुदाए कादिर की पेशन गोई आपको यसाया नबी देता हुआ दिखाई देता है कि वो जो लड़का हमको बख्शा गया है, वो जो बेटा हमको बख्शा गया है, वो मौलूद मुकद्दस खुदाए कादिर है। और फिर जब आप नए अहदनामा को पढ़ते हैं तो फिर यीशु की पैदाइश के वक्त आपको ये सुनने को मिलता है कि लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल है, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। ये वही है जिसकी यसाया ने नबूवत की थी। ये वो खुदा कादिर है। और जब आप यीशु को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है, आप इसको तजुर्बा कर पाते हैं। और जितने उसके साथ रहे हैं उन्होंने इसका तजुर्बा किया कि ये खुदा कादिर है, ये सब कुछ कर सकता है। और वो खुदा जो कादिर मुतलिक है, वो जिस्म में जाहिर हुआ, ये उसके लिए मुश्किल नहीं था। क्योंकि जब हम कहते हैं कि खुदा कादिर है और वो जमीन के हर हिस्से में मौजूद है, तो वो खुदा अगर चाहे तो वो एक जर्रे में भी समा सकता है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है। और वो लोग जो दावा करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा जो कादिर मुतलिक है वो इंसान बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप किस खुदाए कादिर की बात करते हैं? आप किस कादिर मुतलिक खुदा की बात करते हैं? हम ऐसे खुदा की बात करते हैं जिसने खुद से अपनी मोहब्बत में अपने आप को इंसानी जिस्म में जाहिर किया है, और वो खुदा का बेटा मसीह है। यीशु में हम उस कादिर मुतलिक खुदा को तजस्सुम इख्तियार करते हुए और इंसानों में चलते फिरते बातें करते हुए देखते हैं। और आज भी खुदावंद यीशु अपने लोगों के साथ है। फिर आप देखें मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत, वहां पे आपको मिलेगा
कि यीशु मसीह, ये दावा करते हैं, आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग जो मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं, उसके खुदा होने का इनकार करते हैं, वो कहते हैं देखे जी, खुदा तो कादिर मुतलिक है, लेकिन यीशु को कादिर कहा गया है, उसको खुदाए कादिर कहा गया है। तो मुकाशवा की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि मैं कादिर मुतलिक हूं, ठीक है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वो खुदा है, कादिर मुतलिक है, ऑल माइटी गॉड। यसाया के सहीफे में भी ऑल माइटी गॉड लिखा गया है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यसाया नबी के सहीफे के 9 बाब की 5 से 6 आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां पे है वो इटर्निटी या अब्दियत का बाप है। अब्दियत का बाप से मुराद है कि जो वक्त की कैद से बाहर है, जो वक्त और जमानों को तख्लीक करने वाला है, जमानों का उस पर कुछ इतलाक नहीं होता, उसके बरस जो हैं उनको गिना नहीं जा सकता, उनका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो अजल से है, वो एवर लास्टिंग गॉड है, वो इटर्नल गॉड है, ठीक है जी। वो खुदा कादिर है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहर। फिर आप देखते हैं खुदा के कलाम लिखा है, खुदा पाक है। यूहन्ना की इंजील उसके 17 बाब उसकी 11 में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने हक में ये दावा करते हैं कि वो पाक हैं, उन पर कोई गुनाह को साबित नहीं कर सकता। और फिर जब यीशु को मसलूब किया गया तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा यकीनन ये शख्स जो है वो रास्तबाज है। फिर इसके बाद अमाल की किताब 3 बाब और उसकी 14 को पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको यही दिखेगा कि जैसे खुदा पाक है, मसीह पाक है। मुकाशवा 3 बाब 7 आयत, मुकाशवा 6 बाब 10 आयत, मुकाशवा 16 बाब और उसकी 5 आयत। इन सब बातों को आप पढ़ेंगे तो आप यकीनन समझ जाएंगे। सो मसीह यसू बनी इसराइल कौम के लिए उसका एक टाइटल जो है वो एक प्रॉफिट के तौर पर भी है, लेकिन वो प्रॉफिट से बढ़कर है, वो नबी से बढ़कर है। और इसलिए जब आप देखते हैं तो अंबिया जो है वो शरीयत की पासदारी करते हुए आपको दिखाई देते हैं, शरीयत की तालीम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यीशु की जब आप बात करते हैं तो मुखालफीन और वो लोग जो उसके हम असर थे, उनके जुबानों से भी ये बात निकलती है कि ये साहबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। उसको जब आजमाया जाता है शरीयत के अहकामात को लेकर तो वो उसकी ऐसी तशरीह करता है, उनको इस तरह से बयान करता है कि ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे कोहे सीना से मूसा को शरीयत देने वाला बा इख्तियार है, वही है जो अब उस शरीयत की तशरीह और उसकी तफसीर करता है। तो यहाँ पर वो है जो नबी से बड़ा है, ये वो है जो खुदामंद है। इस्तिस्ना की किताब उसका 18 बाब 15 था 18 तो आप देखेंगे तो वहां पर एक नबी का वादा किया गया है। मूसा कहता है कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, ठीक है। तो वो नबी जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि वो मसीह के हक में पूरा होता है, और वो सिर्फ महज नबी नहीं बल्कि वो नबी से बड़ा है। नबी से बड़ा कैसे है? लूका की इंजील को देखेंगे तो वहां पर 21 से 32 आयत में आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे यीशु मसीह के दावे हैं कि वो कहता है कि सबत जो है वो आदमी के लिए बना है। सबत जो है वो आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सबत के लिए। तो वहां पर यीशु कहते हैं कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। सबत का मालिक कौन है? वही जिसने सबत का हुक्म दिया है। और फिर हैकल के बारे में आप देखें तो यीशु मसीह ने कहा यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। कौन हैकल से बड़ा है? हैकल से बड़ा वही है जिसने हैकल को बनवाने का हुक्म दिया था। तो ये वो है जो नबी से बड़ा है, जो खुदामद है, जो मुजस्सम खुदा है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि इस्तिस्ना 4 बाब और 35 आयत में लिखा है खुदामद ही खुदा है।
ईसाया 45 बाब और उसकी 21 تا 25 आयत, वहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देता है कि वो खुदा जो जाहिर होगा वो उसके बारे में लिखा है। रोमियो 10 बाब उसकी 9 تا 10 और फिर 14 आयत को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये भेद बड़ा है कि खुदा मसीह में जाहिर हुआ है। मरकस 12 बाब 36 आयत, फिलिपियो 2 बाब 10 आयत, वहां पर देखेंगे तो लिखा है कि वो खुदा की सूरत पर था और उसने अपने आप को खादिम बना लिया ताकि इंसानों के लिए वो काम मुकम्मल कर सके कि इंसान दोबारा खुदा के साथ ताल्लुक में बहाल किया जा सके। और फिर रोमियो 9 बाब और उसकी 5 आयत को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो खुदाए महमूद है, खुदा है। और कुछ लोग जो हैं जैसे कि यहोवा विटनेस वाले हैं, एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा कल्ट है जो कि ये दावा करते हैं कि यीशु एक क्रिएशन है, यीशु एक तख्लीक है, खुदा की एक मखलूक है, लेकिन ये बाकी मखलूक से अफजल है। और वो ये कहते हैं कि खुदा ने सबसे पहले यीशु को, यानी जो माइकल फरिश्ता है, मिकाइल फरिश्ता है, सबसे पहले खुदा ने उसको बनाया और फिर उसके बाद उसने उसके जरिया से बाकी सब चीजों को बनाया। ठीक है। और जब वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इमैनुएल खुदा हमारे साथ है, तो वो इसको भी इससे जोड़ते हैं कि ये एक ऐसा फरिश्ता है कि जिसके साथ खुदा ने अपनी सिफात को भी मंसूब किया है। ये ऐसा फरिश्ता है जिसको सजदा भी किया जा सकता है, ये ऐसा फरिश्ता है जिसकी प्रस्तिश भी की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह की तालीमात भी मौजूद हैं, लेकिन खुदा के कलाम में ये बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है और हम इसको देखेंगे भी कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फरिश्ता जो है उसके बारे में ये बातें की जा सके। और जब तुमा ने कहा तो उसने क्या दावा किया, जब यीशु ने कहा कि अपने हाथों को मेरे करीब ला, मेरे जख्मों में डाल कर देख, तो तू जान जाएगा कि मैं कौन। तुमा ने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तो वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो खुदाए कादिर था, वो खुदाए मुजस्सम था। और खुदा अपना नाम किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता। ठीक है। फिर आगे भी हम इसको मज़ीद देखेंगे। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको देख लें। मसीह चौपान है, मसीह चरवाहा है, मसीह गलाबान है। ये साया 40 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा, वो चौपान की मानिंद अपना गला चराएगा। आप जबूर 23 पढ़े, वहां पे लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है। वो कौन से खुदावंद की बात की जा रही है? यहोवा की बात की जा रही है। और यूहन्ना 10 बाब 11 में लिखा है कि यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पहला पत्रस 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। ये सरदार गल्लाबान कौन है? खुदा है। और इसको ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया है कि देखो खुदामद आएगा, यानी खुदा आएगा। वो बादशाहों का बादशाह है, कि खुदावंदों का खुदा है। इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद है। और फिर जब आप मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। ये माइकल नहीं हो सकता। ये कुछ और रेफरेंस है आपके साथ, ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। मैं एक और रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा और मैं उसको एक तनाजर में शेयर करूंगा। ठीक है। हम कुछ पॉइंट्स पर गौर करेंगे और उनमें से सबसे पहला यह है कि क्या फरिश्ते को सजदा किया जा सकता है, क्या फरिश्ते को खुदा के बराबर तारीफ, तमजीद और उसकी इबादत की जा सकती है। और हम इस पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक पहले मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद
कुछ एक हवाला जात हैं, उन पे मैं आपके साथ बात करूंगा। रेफरेंस है मुकाशवा की किताब 19 बाब उसकी 10 आयत। इसको आप खोल लीजिए, अपने पास देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी आपके साथ शेयर करूँ। मुकाशवा की किताब का 19 बाब। आप सब इनको अपने पास नोट भी कीजिएगा, लिखिएगा भी, ताकि आप इन सारी बातों से वाकिफ हो सकें और जान सकें। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मुकाशवा 19 बाब 10 आयत में, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। क्या जब यूहन्ना ने देखा और वो उस फरिश्ता को जो उससे बातें कर रहा था, उसको सजदा करने के लिए यूहन्ना उसके हजूर गिरा, तो उस फरिश्ते ने क्या किया, उसको मना किया, रोक दिया कि तू मुझे सजदा ना कर, क्योंकि सजदा सिर्फ खुदा ही को है। मैं भी तेरी तरह हम खिदमत हूं। और किस खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया हूं? ताकि यीशु की गवाही दी जा सके। खुदा ही को सजदा कर। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यूहन्ना को जो फरिश्ता है उसने मना किया कि तू मुझे सिजदा ना कर। और अगर आप कहते हैं कि माइकल जो है वो यीशु था, माइकल फरिश्ता यीशु है, तो उसको सजदा भी जायज है, जैसे कि आपको दिखाई देता है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक फरिश्ता कह रहा है कि मैनू सजदा ना कर, मैं भी तेरा हम खिदमत हूं, ते दूजा कह के ने मैनू कर लै, तो ये मुमकिन नहीं है। आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब, और उसको हम देखेंगे, इसको तफसील से देखेंगे, ताकि हम फरिश्ते को और बेटे को समझ सकें, बेटे की शख्सियत को, किरदार को, उसकी उलूहियत को जान सकें, और फरिश्ते को जान सकें। इसको हम पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने शेयर किया है इब्रानियों पहला बाब, और उसकी पहली 14 आयत हैं। इनमें से जब आप तीसरी आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो उसके जलाल का परताव, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठे। आगे गौर करेंगे, लिखा है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। गौर से पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा कि फरिश्तों में से उसी कदर अफजल हो गया, बल्कि क्या लिखा है, फरिश्तों से। फर्क आप समझ रहे होंगे, फरिश्तों में से नहीं, फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। आगे लिखा है, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा हो। फरिश्तों के बारे में कहता है कि कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है? कब उसने माइकल के बारे में कहा कि तू मेरा बेटा है? कब उसने किसी और फरिश्ते के बारे में कहा कि तू मेरा बेटा है? आगे 6 आयत में लिखा है, और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। सिजदा सिर्फ खुदा ही को कर। यहां पर किसको सिजदा किया जा रहा है? पिलोठे को। पहलोठा कौन है? वही जो अजल से बाप के साथ है, वही जिसने बाप को जाहिर किया है। और लिखा है, ये खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है कि क्या कर, खुदा के सब फरिश्ते से क्या करें, सिजदा करें। आगे फिर फरिश्तों के बारे में कहता है, फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। और ये फरिश्ते क्या हैं? खिदमत गुजार रूहें हैं, ये खादिम हैं, क्योंकि ये मखलूक हैं।
لیکن بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے۔ کس کی بابت کہہ رہا ہے؟ بیٹے کی بابت کہہ رہا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن سے بات کر رہا ہے۔ باپ بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا۔ یہ مائیکل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ مائیکل وہ ہے جو بیٹے کو سجدہ کرنے کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ فرشتگان کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتے اس کے حضور ہر وقت رہتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں۔ 3 بار قدوس کیوں کہتے ہیں؟ ایک بار کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ خدا ثالوث خدا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں 10 آیت کو تو وہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کارگری ہے۔ کون خداوند ہے؟ یہ بیٹے کی بابت کہا جا رہا ہے، یہ بیٹے کی بابت بیان دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر 13 آیت کو پڑھیں گے، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ کس کے بارے میں اس نے کہا ہے؟ اس نے بیٹے کے بارے میں کہا ہے، اس نے خداوند کے بارے میں کہا ہے۔ آگے لکھا ہے، فرشتے کیا ہیں؟ وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ تو یہ کوشچن کیا جا رہا ہے، فرشتے کیا ہیں؟ وہ خدمت گزار روحیں ہیں۔ سو خدا اپنا تخت، اپنا جلال، اپنی گلوری اور اپنا نام کسی دوسرے کے ساتھ نہیں شیئر کرتا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ 22 باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خدا اور برہ کا ایک ہی تخت ہے، 2 تخت نہیں ہے۔ خدا اور برہ کا ایک ہی تخت ہے۔ تو خدا اور برہ ایک ہی ساتھ، ایک ہی جلال میں، ایک ہی تخت پر ہمیں دکھائی دیتے۔ کلوز کروں گا اسے اس آیت کے ساتھ۔ آیت آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور یہی خدا مجسم ہوا، اور یہی خدا ہے جس کو ہم دیکھ پائیں گے جلالی بدن میں۔ جب ہم خدا کے حضور جائیں گے تو جب لکھا ہے کہ پھر ہم اس کو روبرو دیکھیں گے تو ہمیں کون دکھائی دے گا؟ یہی یسوع ہمیں دکھائی دے گا جو خدا اور برہ ہے۔ ہم باپ کو، روح القدس کو یسوع میں ہی دیکھ پائیں گے، کیونکہ اسی میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں خواہش تھی کہ وہ خدا کو دیکھ سکے، اپنے کریٹر کو دیکھ سکے، اپنے خالق، اپنے مالک کو دیکھ سکے، اس خدا نے اپنی اس محبت میں اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا، اور مسیح میں خدا ظاہر ہوا، کیونکہ مسیح خدا ہے، اور اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور اسی لیے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہمیں لوگوں کے ساتھ ملتا، ان کے دکھ درد کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یسوع مسیح میں، اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب
लोग उसका तजर्बा करते हैं तो उसके हजूर झुकते हैं, उसको सिजदा करते हैं और उसको कहते हैं तू ही खुदावंद और तू ही खुदा है। हम खुदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि ये उसका प्यार है, उसका फजल है कि हम खुदा को यीशु के वसीला से देख सकते हैं। ये उसके फजल की बड़ी हमारे लिए उम्मीद है कि हम जब उसके तख्त के सामने जाएंगे तो हम खुदा को रूबरू देखेंगे, हम मसीह को देखेंगे, क्योंकि मसीह में खुदा जाहिर हो। आमीन। सो खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं उसके भारी फजल के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए कि खुदा ने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया, यीशु में जाहिर किया। और ये वही है जिसका नाम आसमान पर, जमीन के ऊपर और सबसे ऊंचा नाम है। वो अपना नाम, वो अपना जलाल, वो अपना तख्त किसी के साथ नहीं बांट। यीशु वो है जो कामिल खुदा है और इसी ने खुदा बाप को हम पर जाहिर किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और हम दुआ करेंगे।